Good morning, dear children. Now we are going to discuss the question answer of the chapter Crying, which is of Unit 4, Marigold book of Class 5 NCERT. Okay. In this chapter, the first question is that according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? मतलब पोएट के अनुसार, जो हमारे पोएट है, पोएट के अनुसार हम थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए. तो आंसर इज दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. ओके, इन द पोएम वी हैव लर्न दैट हमें रोना है, थोड़ा बहुत नहीं रोना, बहुत ज़्यादा रोना. वी शुड हैव टू क्राई अ लॉट. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? बहुत ज़्यादा रोने के बाद क्या करना चाहिए? देन यू कैन टेक ए बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट. हम एक नहाना चाहिए, हमें एक बार नहाना चाहिए रोने के बाद बहुत ज़्यादा. ओके, देन इन पेज नंबर 60 क्वेश्चन थर्ड इज दैट रीड द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोएम. इज द मूड हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट? In the last few lines, the mood of the poet has changed. What it is now? Very happy, angry, cheerful, sad, jealous. The answer is that first is sad, then cheerful. Okay, because in the poem, first the poet or the poet told us to become a sad, बहुत ज़्यादा रोना. After that we have to cheerful. विंडो के बाहर अपनी सर को बाहर निकाल के वी हैव टू एन्जॉय द ब्रीज. ठंडी हवा को हमें एन्जॉय करना है. ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. नो, इट इज रॉन्ग आंसर. इट इज रॉन्ग. पोएट कहा है बहुत ज़्यादा रोना. द पोएट सेड दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. यस, हमारे तकिया भीगने तक हम रोना चाहिए. Then the poet say that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. Yes, it is also right. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. No, it is wrong. तो पहले एक रॉन्ग, लास्ट एक रॉन्ग, बाकी दो 20 का है. दो डबल आई ट्रिपल आई नंबर है, वो दोनों राइट है. ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू, third one is true and last one is false. Okay, dear children, now come to page number 61, that is where do you cry? What are the things that makes you cry? आप कहाँ पर रोते हो और क्या चीज़ है जो आपको रोने देता है? The answer is that I cry in the bathroom. I usually cry when I get a scolding from my parents. Okay, this is the sample answer. According to your choice, according to your situation, you just have to give the answer whatever it may be you want to give or you want to write. जो आप लिखना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, वो आंसर आप लिख सकते हो. जैसे कि आई कैन से दैट आई एम क्राइंग इन माई रूम when my parents denied to purchase the things which I like most. मैं जो चीज़ पसंद करता हूँ अगर वो मेरे पेरेंट्स खरीदने के लिए मना कर देते हैं तो मैं अपने रूम पे जाके रोता हूँ. ओके, लाइक सच काइंड ऑफ आंसर यू कैन गिव. Now, can you cry when you are happy? No, we cannot cry when we are happy, or I cannot cry when I am happy. Then another question, which are the things that makes you happy? In what ways do you show your happiness? क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी बनाता है और in what way do you show your happiness? आप किस वे से अपनी हैप्पीनेस को शो करोगे? आंसर क्या होगा? Eating food. That means whatever the things makes you happy, you just have to write those things. जैसे कि यहाँ पे आंसर मिला है eating food and playing football makes me happy. I scream loudly to show my happiness. मैं ज़ोर से चीखता चिल्लाता हूँ मुझे जब हैप्पी लगता है. तो आपको किस में हैप्पी लगता है? We can write the answer like that. I am happy when I am playing cricket. I am happy when my parents purchasing a new dress for me. I am happy when I am going towards a travel. All those things makes me happy. Okay, like that you can give some answers by your choice. Now question is that we have to write the rhyming word. Those rhyming words are like that: dash, bash, splash, cash, trash,
टियर टियर, क्लियर डियर डियर, शावर पावर, टावर फ्लावर मोवर, पॉक्ड croaked, sock, stroke, joke, wept, kept, crept, lipped, slept. All those things are known as the rhyming word. Which were rhyming word? Okay. Now come to page number 61. That is, the word happiness ends in NESS and comes from the word happy. Write 3 words that end with the same way. That means NESS से end होने वाला 3 words लिखेंगे. Which words do they comes from? वो कौन से वर्ड से आया है? जैसे कि हैप्पीनेस, HAPPINESS, ये वर्ड आया है HAPPY हैप्पी से. ओके, सो इस तरीके से हम और 3 वर्ड्स लिखेंगे जो कि आया होगा किसी और वर्ड से. जैसे कि पोलाइटनेस, ये आया है पोलाइट से. देन हार्टलेसनेस, ये आया है हार्टलेस से. देन एंसरनेस, ये आया है एंसर से, ANSWER, एंसर से. लाइक दैट यू कैन राइट द आंसर. यू कैन राइट सम अदर वर्ड्स ऑल्सो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. ओके, जो आप सोचते हो फीलिंग वाला वर्ड को भर के हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल. दैट इज ओरिड या शॉक्ड या अमेज्ड. यस, ओरिड नहीं होंगे, ताजमहल को देख के ओरी थोड़ी ना होंगे, वो टूट रहा थोड़ी ना. शॉक्ड क्यों होंगे? क्योंकि उनको पता है ताजमहल नाम का कोई चीज़ है. अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स चिंतक हो जाना, शॉकिंग हो जाना, एक तरीके से मतलब आश्चर्य हो जाना, उसे अमेज्ड कहते हैं. वो ताजमहल को देख के आश्चर्य हो गए. बिकॉज देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एज वेल एज इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ ब्यूटिफुल आर्किटेक्ट. ओके, बहुत अजीब तरीके से वो बनाया गया है जो कि अभी तक 7 वंडर के अंडर में आता है. ओके, नाउ कम टू सेकंड वन. दैट इज द लाइट वेंट आउट सडनली. आई वॉज एलोन एंड शॉक्ड, फ्राइटेंड और ओरीड. ओरीड तो नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई पैसा नहीं खोए. शॉक्ड तो नहीं होंगे कि लाइट जली जाते हैं बल्कि. फ्राइटेंड मतलब डर जाना. ओके, सो आंसर विल बी फ्राइटेंड एंड इट इज ऑल्सो ए फीलिंग. Now third one, he has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried or angry. Angry तो नहीं होंगे कोई अगर किसी का तबीयत खराब है. unhappy होंगे बट उससे ज़्यादा worried होंगे. ठीक है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर worried है. worried मतलब थोड़ा दुखी होना और चिंता करना कि कैसे वो ठीक हो जाएंगे. because it is a feeling. Then fourth question, the shopkeeper was dash when he saw his safe white open with all his money missing. जो शॉपकीपर है वो बहुत ज़्यादा ओरिट हो जा रहा है और सेफ वाइट ऑन से फील कर रहा है जब वो मनी लॉस किया. तो क्या होगा यहाँ पे? अनहैप्पी, शॉक्ड और एंग्री. नो, इट इज शॉक्ड. वो शॉक्ड हो गया. ओके, सो हियर द आंसर इज दैट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इट अमेज्ड, सेकंड वाज फ्राइटेंड. अमेज्ड मतलब अचंभित हो जाना, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, ओरिट मतलब थोड़ा ओरी होना, चिंतक होना, शॉक मतलब शॉक में पड़ जाना, सडनली कुछ चीज़ हो जाए आपके सामने तो वही. नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज. देखिए हमें एक चीज़ बताना है जो कि हमें एक्सपीरियंस होगा हैप्पीनेस का, एक्साइटमेंट का और सरप्राइज का. यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज. विथ होम, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाई, वेयर. किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था. ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके कर सकते हैं. ये एक सिंपल आंसर है. बाय योर सेल्फ यू कैन गिव द आंसर. वन मॉर्निंग आई फाउंड माई पेट डॉग मिसिंग एट होम. आई वॉज वरीड अबाउट वेयर ही कुड बी. एक सुबह क्या हुआ, मैंने अपनी पेट डॉग को मिस कर दिया अपने घर पे और मैं बहुत ज़्यादा ओरी चिंता कर रहा था उसको बारे में वो कहाँ पे होगा. आई स्लेप्ट विथ मी इन माई बेड द लास्ट नाइट. मैं उसके साथ रात को, पिछले रात को, लास्ट नाइट मीन्स पिछले रात को सोया था. ही वॉज नॉट वेल सो आई टुक हिम टू बेड द डे बिफोर ही वॉज मिसिंग. खोने से पहले वाले दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं था तो मैं उसको वेट के पास ले गया था, मतलब जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया था. आई स्पेंड द होल डे टू फाइंड हिम. मैं उसको ढूंढने में पूरा दिन लगा दिया. इट वॉज ओनली इन द इवनिंग दैट
The vet called me up and informed me that he was sitting near his hospital. पर कुछ टाइम पहले इवनिंग को मुझे जानवरों के डॉक्टर ने फ़ोन किए, वो बताया कि वो उसके पास बैठा है हॉस्पिटल में. I rushed towards the hospital and was extremely glad to see him after this long hour. इतने घंटों के बाद मैं दौड़ के गया हॉस्पिटल में. उसको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा. I glad to see him. मुझे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हुआ. Okay, this one is the sample answer. Whatever it may be, you can use the words where, when, whom, why and make the such kind of paragraph. Now come to when you have something serious to think about, then you have food for thought. Okay, here is food for your thought. हम खाने के लिए हमारा चिंता क्या होता है. Tomatoes are red, beans are green, a brinjal has a crown just like a queen. Potatoes are brown, onion are pink, carrot has juice which I can drink. Vegetable make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. So some kind of vegetables name you can use and write some kind of paragraph. Answer is that tomatoes are red, beans are green, a brinjal has a crown just like a queen. Tomatoes are brown, onion are pink, carrot have juice which I can drink. Vegetable make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. That thing has been written again as the answer. That means it is a handwriting. सुलेख कहते हैं जिसको हिंदी में. Okay dear children, these are the sample answer. According to your choice you may give the answer. Okay, thank you for watching this video. Have a beautiful day. Take care.